morning to all of you. Welcome to the Talk Series Epilogue, where our esteemed alumni members interact with us to share their experiences and give important professional tips to enhance our personality and employability. Today, as the resource person, we have amongst us Mr. Ashok Kaur, our MBA alumnus of 2011-13 batch, who is presently working with AXA XL as an underwriting consultant. She has more than 10 years of experience in the corporate world and believes in following a professional approach with hard work and determination, while working as a team player to achieve success in life. In her free time, ma'am likes listening to music, reading fiction books, and surfing net for better investment opportunities in today's scenario. Today, she would be talking to us about a very relevant theme of understanding employers' expectations for a focused career plan. We welcome you, ma'am. It's a real pleasure to have you with us today. Thank you Everybody, so much. please a huge round of applause. थोड़ा सा इंटरैक्टिव कर लिए सेशन। Yes, Sure. एक चीज बताओ, what do you think the industry is like? आप जो बाहर जाते हो, what do you feel? कि आपको how is the corporate world? Any guesses? Any answers? कोई तो जवाब दे दो यार, इतना साइलेंट बच्चा बैच तो नहीं हो सकता। कुछ भी बताओ, आपको क्या लगता है corporate world Very कैसा होगा? competitive. हाँ? Competitive. Competitive, very good. कोई और? कुछ और? जो भी आपके दिमाग में है बोलो यार, it's not that difficult. कुछ तो सोचो कि मार्केट कैसी है, आप क्या सोचते हो, कि आपने क्या करना है, what is the look and feel. आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन में भी आते हो, this is also an organization, this is also a structure. What do you feel? कि क्या क्या है यहाँ पर? Institution is also part of an organization only, ना? Yes or no? हाँ, उसी कंपैरिजन में उसी लाइन पे आप सोचो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या डिफरेंट है, क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। Any guesses? Any answers? अरे कुछ तो बोलो यार। What is your experience? कुछ तो बोलो, कुछ तो सोचो। MBA's final year. बताओ। At least you can answer. It's the peak time for you. So explain it now. Now What are your asking some expectations? What are your expectations? Let's talk about that. हाँ, बताओ तो सही कॉर्पोरेट में लगता कैसे? सब कहते हैं कि मैं MBA कर रहा हूँ कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। सब MBA किस लिए कर रहे हो? नौकरी करने के लिए या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? राइट? कुछ अगर किसी और कोई और फील्ड लेनी, किसी ने स्टार्टअप शुरू करना है या कुछ करना है, उसके लिए भी तो तुम पढ़ाई करोगे, राइट? कुछ सोचोगे कि मैंने ये चीज़ फॉलो करनी है तभी मैं ये अचीव कर सकती हूँ, मैं ये बैकग्राउंड करूँगी तब मेरा जाके अल्टीमेट गोल अचीव होगा। कुछ तो अपना करियर पाथ सोचा होगा। चलो, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत लेस एक्टिविटी एंड लेस रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, तो मैं खुद ही आ जाऊँ पिक एंड चूज करने के लिए। Yeah. Yes, before. हाँ, आप बताओ। ये तो मैडम। अच्छा, it's actually a compliment. आप बताओ। डायनामिक एंड ग्रोथ। आपने कॉम्पिटिटिव बोला था, वेरी गुड। आप बताओ। कुछ तो सोचा होगा, हाँ? फॉर ग्रोथ। ग्रोथ तो है ही है, लेकिन आप सोचो तो सही कॉर्पोरेट में जाना क्यों है? मनी। चलो, वेरी गुड। मनी, गुड। वर्क कल्चर, वर्क कल्चर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वेरी गुड। गुड इंडस्ट्री एक्सपोजर, गुड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, वेरी गुड। अच्छा, आप बताओ। कुछ सोचो, कॉर्पोरेट में भी जाना है। केक तो नहीं है खाने के लिए, पड़ा हुआ वहाँ पर। बताओ क्यों जाना है? I will come to know that how company works and grows. गुड, वेरी गुड। भाई मैं फील मोर देन 10 years now in this college. तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है। हाँ, ये भैया lot of things have changed, lot of things have been different. When I left in 2013, तो मेरे दिमाग में भी एक चीज़, and very true to be very honest, I got a placement from this college in Royal Bank of Scotland. To be very honest, ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि मुझे प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगी या कुछ ऐसा नहीं होगा।
बट उस चीज़ को अचीव करने के लिए तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसे कह दो कि नहीं भैया यहाँ MBA कर रहा हूँ, पैसे दिए हैं, पढ़ाई हो गई, नंबर मिल गए कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं। You have to work hard. That is the reason I have chosen this topic, employer's expectation and along with it focused career plan. क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि इंडस्ट्री में जाना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन उसके लिए करियर पाथ भी होना चाहिए ना आप लोगों के पास। अगर करियर पाथ ही नहीं है तो आप कैसे जाओगे, उसको अचीव कैसे करोगे? अगर मैं एक इंटरव्यू देने जा रही हूँ, मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गई हूँ, तो आप एक बताओ एम्प्लॉयर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसके 100% आंसर दे दूँगी। But there's only not one round of interview. There's a series of interview which goes on. एक इंटरव्यू क्लियर करोगे, नेक्स्ट के लिए एलिजिबल होगे, सेकंड क्लियर करोगे, थर्ड के लिए एलिजिबल होगे, थर्ड क्लियर करोगे, फिर फोर्थ, एंड देन कम्स द फाइनल राउंड. There is a series of steps which you need to follow. Then अगर आप ये सोचते हो कि भैया नौकरी कर ली, नौकरी मिल गई, वहाँ पर मेरी आराम की जॉब है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, nothing. You have to show yourself. You have to prove yourself. वहाँ जाके भी सक्सेस के लैडर होते हैं. ऐसा तो नहीं है कि अब ये बस घुस गए, 5 पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, भाई मस्ती मारनी है, कुछ करना नहीं है. 10 साल एक ग्रोथ और एक सक्सेस को अचीव करने के लिए ना बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत है. आज के सिनेरियो में द वर्ल्ड इज रियली कॉम्पिटिटिव एंड यू थिंक यू एक्चुअली बहुत लोग एस्पायर करोगे मुझे तो गूगल में नौकरी चाहिए भैया. सीधी सी बात है, टॉप पिक यू ऑलवेज सर्च फॉर द टॉप 10 कंपनीज, राइट? बेस्ट प्लेसेस टू वर्क विद. मैं कहूँ नहीं जी मुझे गूगल में नहीं, मुझे तो अमेरिकन एक्सप्रेस में चाहिए. उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी. So let me share my experiences with you today. Right? I am working with AXA XL. That is one of the property and casualty multinational company which provides more than 200 risk solution to people all across the world. Okay? And now you must be know it is one of the top best companies in 100 where women can work with a lot of flexibilities. And recently in 2024 it got awarded for the best HR team. So I'm actually very happy that I'm associated with such a prestigious organization. When I left this batch in 2013, right, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ थी मुझे कॉर्पोरेट तो ज्वाइन करनी है, बट मेरे को एक करियर पाथ मेरे दिमाग में था. That is the reason I decided कि मुझे क्या करना है ग्रेजुएशन में, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करना. And then only I actually started applying for it. MBA first year के final year के कितने students हैं यहाँ पर? आप लोगों का प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होंगे, राइट? कितने प्रोजेक्ट्स बंदे सिंसियरली बनाते? आपने तो फर्स्ट ईयर में भी दिया होगा, BBA में भी करा होगा, whatever you must have done in a graduation, right? You must be done with your projects, right? Being a fresher is the toughest job in the market. क्योंकि आपको कोई वो नहीं है, आपने सिर्फ किताबी चीजें पढ़ी हैं, आपने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया. जब तक आप प्रैक्टिकलिटी नहीं देखोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे. सबसे पहले what I say, if you are MBA final, make a LinkedIn account. किन-किन के LinkedIn accounts हैं? All of you have? How many of you go and read the job description of various companies who are hiring freshers? None. LinkedIn account सिर्फ बनाने के लिए नहीं है. Start searching. और दूसरी चीज, आप में से कितने लोगों ने फाइनेंस ली है, कितने लोगों ने मार्केटिंग ली है, और कितने लोगों ने what are the bifurcations? You Finance and HR. finance and HR. You Finance and marketing. Finance and marketing. you Marketing and operation. marketing and operation. Good. Finance and marketing. I am from marketing and international business. तो आप बताओ. I'm first year. अच्छा, okay. And आप? Finance operation. Finance and operations. Finance and marketing. Finance and marketing. मार्केटिंग मेजर सिर्फ आपका है, राइट? हाँ. तो आप बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि मार्केटिंग वालों को सिर्फ सेल्स की जॉब मिलेगी. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. I being myself a marketing and international business student, right? When I applied for the lot of interviews, I gave a lot of interviews and I got 3 proposals at that time. One was from the Royal Bank of Scotland,
Second was from my AXA XL. Third was from my Goa Eagle. Right? And after analyzing it, I chose the best one. क्योंकि मुझे जो पता था, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि बीइंग अ फ्रेशर, आप ये सोचो कि भैया आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो आपको इमिडिएटली ऑन पेरोल जॉब मिल जाए, नहीं. फ्रेशर्स को हमेशा 99% यू विल ऑलवेज गेट अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वेयर इन यू हैव टू प्रूव योर वर्थ. अगर आप अपनी वर्थ नहीं प्रूव कर सकते देन यू आर एक्चुअली चक्ड आउट ऑफ द कंपनी. बिकॉज व्हाई विल कंपनी पे यू if you're not showing your worth? कंपनीज आज की डेट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी हैं बिकॉज दे आर नो पीपल कि भाई बहुत बच्चे ऐसे भी आते हैं कि जो सिर्फ एक केक वॉक समझते हैं कि भैया ज्वाइन कर लिया, काम कर लिया, घर चले गए, 9 to 5 की जॉब है. नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं. 9 to 5 की जॉब, गवर्नमेंट जॉब कर लो भैया, कॉर्पोरेट में जाने की जरूरत नहीं है. एक एम्प्लॉयर जब आपको एक कंपनी में हायर करता है उसकी 3 बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है. फर्स्ट, यू नीड टू बी डिपेंडेबल इनफ कि देन व्हाटएवर टास्क ही एलोकेट्स टू यू इज डन with 100% accuracy and with 100% determination. Second, you are professionally able, right? आप एथिकली साउंड हो, आप लीगल और वर्क एथिक्स में प्रॉपर नॉलेज रखते हो कि दैट व्हाट इज प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज अनप्रोफेशनल, राइट? आप ऑफिस आके बातें कर रहे हो फ्लोर पे, नहीं चलेगा. दैट्स अ प्रोफेशन बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स एज वेल. They might be doing something very important, dealing with some important data which needs to go to the other stakeholders. ऐसा नहीं है क्या आप आगे जाके वहाँ पर आपसे गॉसिप्स करो चलेगा, नहीं. आप प्रोफेशनली एबल्ड हो या नहीं, ये आपके इंटरव्यू प्रोसेस में आपको जज करा जाए. तीसरा गैस मारो क्या चाहिए होगा. एक तो डिपेंडेबल हो गया, दूसरा प्रोफेशनली एबल्ड हो गया, तीसरा that you have the minimum basic skill requirements. That is reason I am telling you MBA final year students start reading the job descriptions of various organizations कि भैया क्या क्या मांगते हैं वो. आपने अपनी फील्ड सेलेक्ट कर ली, you have decided that you want to go into marketing, you want to go into finance. अगर आप मेजर फोकस करना चाहते हो या अपने माइनर को हाईलाइट करना चाहते हो, आप उस अकॉर्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शन तो पढ़ो. जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? इंडस्ट्री इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगी. भाई मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन में घुसी थी. I was hired as a 1-year contractual person in there because being a fresher. Then because of my work experience and because of my work and because of my these 3 capabilities, right, I was actually got converted into a permanent employee within 6 months period. 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में परमानेंट कर दिया. इट्स अचीवमेंट. मेरे लिए तो सक्सेस ही था भैया कि भाई 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आपको ना कुछ मिलना है, ना आपको कोई हाइक मिलेगा, ना कुछ मिलेगा. आप सेम सैलरी पे काम कर रहे हो. 6 महीने में आप परमानेंट एम्प्लॉय हो गए विद इंक्रीज सैलरी एंड विद लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन गिव्स. तो मेरे लिए वो सक्सेस. Second success was that when I actually got an opportunity to go into my marketing research department. First of all, ये myth है कि भैया आपने अगर organization choose करी है, choose whatever organization you want to do. All the organizations have all the departments. Me being an organization, मेरे office में marketing का department भी है, मेरे office में finance का department भी है, मेरे office में IT का department भी है, मेरे office में operations का department भी है. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट इट्स नाउ अप टू यू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू डू. अब मेरी इंश्योरेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने मार्केटिंग में करी है, तो आपको क्या भैया वहाँ पर बेचने के लिए होगा, नहीं. AXA doesn't deal with its clients directly. It does deal with direct client with a joint venture and it's with Bharti AXA. But I am in the multinational organization part. I don't deal with the clients directly.
I deal with it through the underwriters. और मेरे सारे clients बाहर के हैं, US के हो गए, यूरोप के हो गए, not for me, right? तो मेरा mindset यही है कि आप पहले ये सोचो कि आपने करना क्या है, क्या आपने करियर प्लान चूज करा है, आगे कुछ तो गोल्स होंगे लाइफ में अचीव करने के लिए। यहाँ से आप ये सोचो कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो मुझे 12 लाख 13 लाख 14 लाख का पैकेज मिल जाएगा, नहीं। उस पैकेज को अटेन करने के लिए अपने अंदर भी तो क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। बिना क्वालिटीज डेवलप करे, बिना कुछ करे आप ये सोचो कि मुझे 13 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक चीज हमेशा मान के रखो, और the weightage is always given to the institution as well from which you are doing, right? But everybody cannot go to Tier 1 institutes. Tier 1 का हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती, हर किसी का मोटो नहीं होता भैया मैं 99% से कैट क्रैक कर लूँ। और चलो कैट क्रैक भी कर लिया, बट उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे हाई स्कोर से पास आउट हूँ। Tier 1 इंस्टीट्यूट्स के बंदे भी फेल होते हैं भैया, घुस तो जाते हैं Tier 1 में, बट उसके बाद वहाँ से निकल के बाहर आना, दैट इज अ मेजर चैलेंज। आपने तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप क्रॉस करा ना कॉलेज चूज करके। आप लोगों ने भी कॉलेज लिया है, आपने कुछ तो सोचा होगा कि मैंने कॉलेज लिया, मैंने ये फील्ड लेनी है, मैंने आगे क्या करना है। देखो एक इंडिविजुअल करियर प्लान का ना एक सेल्फ मोटो होता है कि भैया पहले तो एक अपना एक गोल बनाता है कि मैंने जाना है। फर्स्ट सेलेक्ट द इंडस्ट्री वेयर यू वांट टू, राइट? Whether you want to go to a teaching organization, whether you want to go to a finance organization, maybe you want to go, maybe you want to apply, you want to go to corporate, you want to join a startup, क्या करना है, right? आपने सब एनालाइज करके then comes the opportunity, realizing that different roles, right? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करी, भैया इसकी मार्केट में रिव्यू अच्छे नहीं है, ठीक है, मैंने इसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया, इसकी मार्केट में रिव्यू बहुत अच्छी है, मैं इसको शॉर्टलिस्ट किया। But don't leave them because there are an opportunity for you, right? Then self-assess yourself कि आपके पास कितने skills हैं, कि आपको क्या और develop करना है, right? आजकल जैसे हमारे organization में Power BI, right? Microsoft Excel, advanced courses, and especially you going doing operational, right? Operational research की बहुत demand है। These are the major upcoming areas which actually corporates are focusing on. अगर कहोगे भैया मुझे एक्सेल का बेसिक आता है, फॉर्मूलाज लगाने आते हैं, वो नहीं चलेगा भैया। एडवांस एक्सेल जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं फायदा। तो राइट, एनरोल योरसेल्फ इनटू डिफरेंट कोर्सेज, राइट, व्हिच आर अवेलेबल। मैं तभी कह रही हूँ स्टार्ट रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शंस, ऐसा बहुत चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, राइट? 10 साल की जो जर्नी है ना, मैंने ऐसे ही नहीं पास किया कॉर्पोरेट में। आई जस्ट हैड गॉट इनटू एन एंट्री फेज, बेसिक लेवल पे घुसी थी मैं, बेसिक लेवल पे घुसी, उसके बाद सक्सेसफुल आर्टिस्ट। जब बेसिक लेवल पे घुसता है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड, देखिएगा तो बहुत अच्छा लगता है, पार्टीज होती हैं, सब कुछ होता है, मज़े